محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیب نور سطع المدینہ. تاخیر اور تمہید کے ہمارے درمیان مفتی و قاضی مولانا عبدالہادی صاحب شہسوار فصاحت و بلاغت محتمم مدرسہ اسلامیہ عربیہ حسینیہ بڑا مدرسہ موضع کاشت بڈھا میرٹھ، میں ان کو مسند خطابت پر حاضر کرنا چاہتا ہوں. حضرت والا تشریف لا کر اپنے خصوصی بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ حضرات. آگے آ جاؤ بھئی، مفتی صاحب کا خصوصی بیان ہوگا. آگے کو ہو جاؤ، مل کے بیٹھ جاؤ. آ جاؤ بھئی، مل کے بیٹھ جاؤ. ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرے برادر کبیر عزیز محترم حضرت مولانا مفتی قاری ہاشم صغیر صاحب دام فیوضہم نعت نبی گنگنا رہے تھے اور ہم رسول پور اورنگ آباد میں بیٹھ کر بھی مدینے کی سیر کر رہے تھے. جی، یہ آپ کے کلام کا بھی جادو ہے اور آپ کی آواز کا بھی جادو ہے کہ وہ جہاں بیٹھ کر گنگنانا شروع کریں میرے آقا کے شہر کی زیارت کرا دیتے ہیں. ہم سب کے اور اس جلسے کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا محمد عابد صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. ان حضرات کا جناب ظریف احمد صاحب کا خاص طور سے حکم تھا آپ لوگوں سے ملاقات کرانا، ایک ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین. معلوم ہوا کہ قلندر نے علم کا تاج محل بنایا ہے. میں بھی اس شاہ جہاں سے ملاقات کرنے کے لیے چلا آیا. چند منٹ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، پھر آپ کے بچے کی دستار، اس کے بعد دعا. آپ کو اجازت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله المولانا العظيم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر جگہ پر گونج برپا ہے تیری تکبیر کی، ہر جگہ پر گونج برپا ہے تیری تکبیر کی، تیری آوازوں میں گویا دھار ہے شمشیر کی۔ تو نے ڈٹ کر کفر و باطل کا کیا جو سامنا، تو نے ڈٹ کر کفر و باطل کا کیا جو سامنا، لاج رکھ لی تو نے پوری قوم کی توقیر کی۔ تیری جیسی باندیے زہرا ہے جب تک ہند میں، تیری جیسی باندیے زہرا ہے جب تک ہند میں، فکر کی حاجت نہیں کفار کی تدبیر کی۔ تیرے عزم حوصلے سے کانپ اٹھا ہے جہاں، تیرے عزم و حوصلے سے کانپ اٹھا ہے جہاں، ہر کڑی ٹوٹی پڑی ہے کفر کی زنجیر کی۔ تو نے جب اللہ اکبر کی لگائی تھی صدا، تو نے جب اللہ اکبر کی لگائی تھی صدا، قلب باطل پر لگی تھی چوٹ جیسے تیر کی۔ تو نے ثابت کر دیا تو شیرنی کے مثل ہے، تو نے ثابت کر دیا تو شیرنی کے مثل ہے، جب نہ کی پرواہ تو نے گیدڑوں کی بھیڑ کی۔ تجھ کو قاضی کا سلام اے میری پیاری سی بہن، تجھ کو قاضی کا سلام اے میری پیاری سی بہن، ہو نہیں سکتی ادا قیمت تیری تکبیر کی۔ عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں اور اسٹیج کے اوپر مؤقر علماء اکرام کی مبارک جماعت، اللہ کا بے حد فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اس نے کائنات کی سب سے انمول دولت یعنی ایمان سے ہم سب کو بغیر مانگے، بغیر مجاہدے کے، بغیر طلب کیے، بغیر مشقت کے نواز دیا۔ اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی پہچان کرانے کے لیے، جنت کی شناخت کرانے کے لیے اور زندگی کا شعور سمجھانے کے لیے آقائے نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی سے نواز دیا۔ اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کا رابطہ ضابطہ سمجھانے کے لیے، زندگی کا شعور بتلانے کے لیے، زندگی گزارنے کے طریقے سمجھانے کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب سے نواز دیا۔ یہ اللہ کی بڑی کریمی ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے ہم سب کو یوں ہی نواز دیا، جن نعمتوں کے متعلق نہ ہم نے کوئی مجاہدہ کیا، جن نعمتوں کے متعلق نہ ہم نے اللہ سے کوئی طلب کی، جن نعمتوں کے متعلق نہ ہم نے اللہ سے کوئی درخواست کی، جبکہ یہ نعمتیں اتنی بڑی ہیں کہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جانیں تک قربانیں کی گئی ہیں۔ لوگوں نے اللہ کو پہچاننے کے لیے مال ہی نہیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنے گھرانوں کو قربان کیا ہے، اور لوگوں کی بات نہیں کرتا، خود میرے اور آپ کے آقا سید الکونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد، ان نعمتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔
अपनी माल को कुर्बान करते हैं, अपने शहर को कुर्बान करते हैं, अपनी औलादों को कुर्बान करते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का दिया हुआ दीन, अल्लाह का अता करदा तोहफा ये कायम और दायम रहे। अल्लाह ने जिस दीन के लिए, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए दुनिया के अंदर भेजा है वो मकसद पूरा हो जाए। अगर कुफारे मक्का अल्लाह के महबूब मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ते हैं कि आप मक्के के अंदर हैं, खाने काबे के सहन के अंदर हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और काफिर ताब न ला सकता है इस बात की कि वो एक अल्लाह, एक वहदहू ला शरीक अल्लाह की इबादत करें, एक अल्लाह की पूजा करें, एक अल्लाह की परस्तिश करें, वो ताब नहीं ला सकते हैं। वो लाते हैं एक ऊंट का ओज उठाकर और आकाए नामदार की पीठ पर लाद देते हैं। क्यों? इसलिए कि कहीं इस दीन के नाम को ये बुलंद न कर दें, परेशान हो जाएं, परेशान होकर इस दीन के रास्ते से फिर जाएं। इस दीन के रास्ते पर बुलाने वाली, दावत देने वाली अपनी इन नदाओं को, इन सदाओं को बंद कर लें। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो अपने अभी बच्ची हैं, छोटी सी बच्ची हैं, जब देखती हैं कि मेरे आका की पीठ पर एक गिलाजत लाद दी गई है, मेरे आका की पीठ के ऊपर गंदगी को डाल दिया गया है, वो भाग कर आती हैं, दौड़ कर आती हैं, मेरे आका सजदे में हैं, अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस गिलाजत को, उस गंदगी को हटाने लगती हैं, उस बोझ को उतारने लगती हैं, वो सबक देती हैं, वो दर्स देती हैं। हम ईमान वाले हैं और ईमान के ऊपर आने वाली जो कुछ मुसीबतें होंगी हम उसके सामने सर तस्लीम कम करेंगे, कुर्बान करेंगे अपने आप को, लेकिन ईमान के ऊपर ज़र्ब नहीं आने देंगे। ये हमारे असलाफ ने बतलाया है, ये हमारा जिनकी हम औलादे हैं, हमारे अकाबरीन ने बताया है, हमारे आबाओ अजदाद ने बताया है, सहाबा ने बताया है, सहाबियात ने बताया है। दीन की दावत देते हैं, दीन की इशाअत के लिए ऐलान करते हैं, या अय्युहन्नासु क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। और इंसानों आओ मैं तुम्हें एक अल्लाह का नज़ारा दिखलाता हूँ, और इंसानों आओ मैं तुम्हें एक अल्लाह से मुलाकात कराने का रास्ता बतलाता हूँ। या अय्युहन्नास, और लोगों आओ मैं तुम्हें कामयाबी का रास्ता दिखलाता हूँ। या अय्युहन्नास, और लोगों आओ मैं तुम्हें वो रास्ता दिखलाता हूँ जिसके ऊपर अगर तुम दुनिया के अंदर चल गए तो दुनिया भी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी, और तुम अमल पैरा हो गए तो तुम जन्नत के मिज़दाक बन जाओगे। अल्लाह के महबूब मेरे और आपके आका फरान की चोटी पर चढ़कर ऐलान करते हैं, या अय्युहन्नास, और लोगों आओ जरा आओ, कुलू, और अपनी जबानों से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, एक वहदहू ला शरीक अल्लाह की पूजा करते हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, तुफ़्लिहू, तुम्हारे लिए कामयाबियों के दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे आका ऐलान करते हैं और कुफार तदबीर करते हैं कि इस जबान को बंद किया जाए, इस जुमले को रोका जाए और इस तदबीर को रोका जाए जिसके अंदर फंसकर हमारे लोग बागी होते चले जा रहे हैं। नतीजा यहां तक निकलता है कि आपको आपके घराने से, आपके गांव से, आपके शहर से निकाल दिया जाता है और आप हिजरत को इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि मैं अपने गांव से, अपने शहर से निकल तो सकता हूं लेकिन दीन के ऊपर ज़र्ब नहीं आने दे सकता हूं। मेरे और आपके आका इस दीन की खातिर कुर्बानियां पेश करते हैं, इस दीन की खातिर कुर्बानियां पेश करते हैं। एक सहाबिया दौड़ कर आती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक हो फातिमतुज़ ज़हरा के यहाँ पर बेटा पैदा हुआ है, मैं आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ, मैं आपको मुबारकबाद देने आई हूँ, आप नाना बन गए हैं, आपके यहाँ पर नवासा पैदा हुआ है। अल्लाह के महबूब पहले तबस्सुम फरमाते हैं, खुशी फरमाते हैं, खुशी का इजहार फरमाते हैं कि मेरे यहाँ पर, मेरी लख्त जिगर, मेरी नूर नजर के यहाँ पर बेटा पैदा हुआ है। लेकिन तभी
आपकी आंखें मुबारक से, आपकी इन आंखों मुबारक से आंसू बहने लगते हैं, आंसू टपकने लगते हैं। सहाबिया सवाल कर देती है, अल्लाह के महबूब, खुशी का मकाम है, बेटा पैदा हुआ है, क्या आपको खुशी नहीं हुई? आपकी आंखों से ये आंसू क्यों जारी हो गए हैं? आप फरमाते हैं, खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है कि फातिमा के यहाँ पर बेटा पैदा हुआ है, लेकिन मुझे जिब्रील ने नजारा दिखाया है कि इस दीन की खातिर, जिस दीन को लेकर मैं आया हूं, मेरे उस बेटे के सर को नेज़े के ऊपर टांग दिया जाएगा। मैं अपनी उस औलाद को कुर्बान होता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि एक को जहर देकर तड़पा कर मार दिया जाएगा और एक के सर को नेज़े के ऊपर लटका दिया जाएगा। लेकिन फरमाते, ये कुर्बानी देना ये हमारा अजर का काम है, ये कुर्बानियां देना ये हमारे मकाम और मर्तबे को बढ़ाने के लिए है, ये कुर्बानियां देना अल्लाह से अपना कुर्ब बढ़ाने के लिए है। इससे मायूस नहीं होना है, इससे पीछे नहीं हटना है। ये कुर्बानियां देना, इस कुर्बानी को देकर हमने दीन को सींचा है। मेरे और आपके आका औलादों की कुर्बानी देते हैं, अपने शहर, अपने इलाके से निकलने की कुर्बानी देते हैं, तकलीफें बर्दाश्त करने की कुर्बानी देते हैं, लेकिन दीन के दामन को मजबूती के साथ में पकड़े रहते हैं और हमें तलकीन करते रहते हैं और हमें सबक देते हैं और दर्स देते हैं कि बातिल की कड़ी नजरों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस्तिकामत के साथ अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो। अल्लाह की मददें आपके सामने शामिल आएंगी, आपकी अल्लाह की मददें शामिल हाल होंगी। क्यों? इसलिए कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, मेरे कुरान ने कहा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ में पकड़ लो। मुसलमानों, आज हमने अपने आप को अल्लाह से दूर कर लिया है, हमने आज अपने आप को दीन से दूर कर लिया है, हमने अपने आप को इस्लाम से दूर कर लिया है। हम ये ख्याल कर बैठे हैं कि मेरा नाम मुसलमानी है, मैं मुसलमानों के महल्ले में रहता हूँ, मुसलमानों के घराने में पैदा हुआ हूँ, मेरा मामला मुसलमानों के साथ में किया जाता है, मेरा नाम मुसलमानों के साथ में गिना जाता है, मैं मुसलमान हूँ। हम फख्र कर कर बैठ गए। अगर मालूम कर लिया जाए क्या मुसलमानों वाले आमाल तेरे अंदर मौजूद हैं, क्या तू अल्लाह को राजी करने वाला है, क्या तू नबी के तरीके पर चलने वाला है, तो अल्लाह की कसम अगर मैं मुबालगे के साथ ना कह रहा हूं तो अक्सर लोग ऐसे होंगे जिनका शुमार मुनाफिकों में हो जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि जिनका शुमार काफिरों के अंदर भी हो जाता हो। मालूम ही नहीं है सुबह से लेकर शाम तक कितने अमल ऐसे करते हैं, हमें मालूम ही नहीं हम इस्लाम के दायरे में रहे भी या खारिज हो गए, हमें पता चला ही नहीं हम अल्लाह को मानने वाले बचे भी या ना बचे। और मैं नहीं कहता, मेरे आका कहकर गए हैं, आपने फरमाया है एक दिन वो आएगा कि सुबह को मुसलमान होगा लेकिन शाम को काफिर होगा। एक दिन आएगा कि ये मुसलमान सुबह को शाम को मुसलमान होगा और सुबह को मर रहा होगा तो काफिर मर रहा होगा। हालांकि लोग इसको मुसलमानों की रस्म रिवाज के तहत कफन भी पहनाएंगे, दफन भी कर कर आएंगे, लेकिन इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हमने मुसलमानों दीन को समझना बंद कर दिया, इस्लाम को जानना बंद कर दिया। मेरे और आपके आका ने जो हमें दर्स दिया था उस दर्स को हम भूला बैठे हैं। हम अपनी मस्ती में मगन हो गए हैं, अपने आप में मगन हो गए हैं, दुनिया की रंगरेलियों में उलझ गए हैं, दुनिया की दिल फरेबियों और इन दुनिया के खूबसूरत नजारों में उलझ कर रह गए हैं। हमने इस्लाम के सबक को और दर्स को समझा ही नहीं है। ये दिल जिसको अल्लाह ने कहा था कि ये दिल हमने तुम्हारे लिए आईना बनाया है, जिसको अल्लाह ने कहा था कि ये दिल तुम्हारे लिए हमने आईना बनाया है, इसको पाको साफ रखना, इसको पाको साफ रखना, इसके अंदर सिर्फ अल्लाह को बसाना, इसके अंदर सिर्फ अल्लाह को बसाना। मुसलमानों, हमने गुनाह कर 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 इस पाको साफ दिल को काला कर लिया है, सियाह कर लिया है। हमने इस दिल के अंदर जहां अल्लाह की मोहब्बत रखनी थी हमने बुग़्ज़ रख लिया है। इस दिल के अंदर जहां अल्लाह की मोहब्बत रखनी थी, नबी की मोहब्बत रखनी थी, हमने यहां अदावतें रख ली हैं। जिस दिल के अंदर अल्लाह के कुरान की मोहब्बत रखनी थी, इस दिल के अंदर यहां हसद रख लिया है, हमने रियाकारियां रख ली हैं, और जो जो काम अल्लाह से दूर करने वाले थे इस दिल के अंदर बसा लिया है। अगर नहीं मिलता हमारे दिल के अंदर तो अल्लाह का खौफ नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता हमारे दिलों के अंदर कुछ तो अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलती, नबी का तरीका नहीं मिलता। आज
آج اگر ہم اپنے محلوں کے اوپر غور کریں, اپنے گھرانوں کے اوپر غور کریں, تو ہمارے گھر کا ہر فرد اللہ کا باغی نظر آتا ہے, نبی کا باغی نظر آتا ہے, اللہ کا دشمن نظر آتا ہے, اللہ کے حکموں کو توڑنے والا نظر آتا ہے, نبی کے طریقوں کو اپنے پیروں تلے روند کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والا نظر آتا ہے. کیا اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں اسی مقصد کے تحت بھیجا تھا؟ کیا دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہی تھا کہ دنیا کے اندر جاؤ اور جانے کے بعد میں اپنی زندگی جیسے چاہو ایسے گزارو, جو دل میں آئے وہ کرو, جو دماغ کہے وہ کرو؟ ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد تو یہ نہیں تھا. اگر یہ دنیا کے اندر الجھانا ہی مقصد تھا, دنیا کی زندگی گزارنا ہی مقصد تھا, تو اللہ رب العالمین اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیتا, پھر موت کے سلسلے کو نافذ نہ کرتا, کل نفس ذائقۃ الموت کا زمرہ نہ سناتا, پھر موت کے اس شکنجے کو ہمارے سروں پر نہ مسلط کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بتلا دیا, یہاں سمجھا دیا کہ یہ موت آئی ہے, گویا کہ اس بات کا تمہیں سبق دے رہی ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جس کو میرے قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی یعنی آخرت والی زندگی, اس کے اندر تمہیں اللہ کے حضور رہنا ہے. دنیا کے اندر آنا تو ایک مقصد کے تحت تھا. کیسے مقصد کے تحت؟ جیسے ہمارے اس گاؤں سے کوئی شخص نکلا اور نکلنے کے بعد میں سعودی عربیہ چلا گیا, یہاں سے نکلا, نکلنے کے بعد میرٹھ شہر میں جا کے اس نے کام کر لیا, کوئی دکان کھول لی, دہلی میں جا کے کوئی کارخانہ کھول لیا. اس سے پوچھے کہ بھائی تو اپنا گاؤں چھوڑ کر آیا ہے, اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا ہے, اپنے باپ کو چھوڑ کر آیا ہے, کیا تیرا ارادہ یہی رہنے کا ہے؟ وہ کہے گا نہیں, ہمیشہ ہمیشہ سعودی نہیں رہ سکتا, میرے آبا و اجداد وہاں پر گاؤں میں ہیں, میری زمینیں میرے گاؤں میں ہیں, میرے بیوی بچے میرے گاؤں میں ہیں, میں تو سعودی عربیہ اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے حالات کو سازگار بنا سکوں اور اپنی ہمیشہ زندگی جو میرے گاؤں کی زندگی ہے اس کو بہتر بنا سکوں, اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ روپیہ پیسہ کمانے کی غرض سے یہاں آیا ہوں. کوئی کہے صاحب میں سعودی عربیہ جاتا ہوں اور جانے کے بعد وہ کمائے نہیں, اس کے ویزے کے اوپر جو مہر لگی ہوئی تھی اس پر عمل نہ کرے اور کمرے میں جا کر سو جائے, صرف سونا مقصد بنا لے, کمرے میں بیٹھنا مقصد بنا لے. گاؤں کے لوگ بھی, عقل مند لوگ بھی کہیں گے بڑا بے وقوف ہے, سفر کر کر تو سعودی تک گیا تھا لیکن کر کے کچھ نہیں آیا. کہتے ہیں نا, کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے تحت وہ وہاں گیا تھا اس مقصد کو پورا نہ کر سکا. ہماری بھی مثال ایسی ہی ہے. اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا تھا اور فخر کیا تھا, اس دنیا کی رنگریلیوں میں الجھایا تھا اور ملائکہ سے کہا تھا میرے نورانی ملائکہ آؤ, یہ دیکھو میرا بندہ, یہ میرا خلیفہ, یہ میرا نائب, یہ دنیا کی دل فریبی بھی دیکھ رہا ہے, یہ دنیا کے نظارے بھی دیکھ رہا ہے, بھری جوانی کے اندر موجود ہے, نفسانی خواہشات کا شکنجہ اس کے سر پر لگا ہوا ہے, لیکن پھر بھی میرا خوف اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اس کے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھ جاتے ہیں, دنیا کی طرف نظر نہیں ڈالتا. میرے خوف میں میرے سامنے اپنی جبی کو جھکاتا ہے, اپنی ناک کو رگڑتا ہے اور کہتا ہے ربا میں تیرا غلام ہوں, میں تو تجھے راضی کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں, میرا مقصد کچھ نہیں, کھیت کھلیانوں میں اپنی زندگی گنوانا میرا مقصد نہیں. مولا میں تو تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں, مجھے دنیا کے اندر جو تو حکم دے گا اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں. جب بندہ یہ کہتا ہے تو پھر قرآن چیخ کر کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, یہی ہے جو کامیاب اور کامیاب ہے, کامران ہے, یہی ہے جن کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. اور اگر ہم اپنے مقصد حقیقی سے برطرف ہو گئے اور اپنے مقصد سے اگر ہم نے اپنی نگاہوں کو چرا لیا اور اپنے مقصد سے ہم نے اپنے آپ کو ہٹا لیا تو پھر میرے قرآن نے ایک ضابطہ بتایا, اور قرآن میں اللہ نے قسم کھا کر یوں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. اب ترجمہ کرائیں میرے ان اکابرین سے, یہ بتلائیں گے جن کے قدموں میں بیٹھ کر میں آپ کو اپنا سبق سنا رہا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے, اللہ نے قسم اٹھائی ہے اور میرے رب نے فرمایا ہے قسم ہے مجھے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, ہر ایک انسان نقصان میں ہے, ٹوٹے میں ہے,
है, खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन जो लोग मेरी जात के ऊपर ईमान रखते हैं कामयाब हैं। जो लोग मुझे मानते हैं कामयाब हैं। जो मेरी बातों पर अमल करते हैं कामयाब हैं। जो मेरे नबी की इताअत करते हैं कामयाब हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, जिन्हों के दिलों के अंदर ईमान की शमा जलती हैं, कामयाब हैं। वामिलुस्सालिहात, और सारी जिंदगी फिर वो ईमान के तकाज़ों को पूरा करते हुए अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, वो लोग कामयाब हैं। मेरे कुरान ने कहा है, अल्लाह मेरे महबूब से कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, और मेरे नबी कहो आप इनसे कि अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी, तो ज़ाब्ता बतला दो, मंत्र समझा दो, इनको वजीफा बतला दो, इनको इस बात से आगाह कर दो, फत्तबिऊनी, जो नबी ने हुक्म दिया है उस नबी के तरीके को अपनी जिंदगी का शेवा बना लो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने वाला बन जाएगा। मुसलमानों, हमने सिर्फ लफ्जी अपने आप को मुसलमान कह लेना काफी समझ लिया। दुनिया के अंदर उलझ कर जिंदगी गुजारने वालों के लिए मेरा कुरान कहता है, अम हसिबतुम, कुरान ने फरमाया है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। कुरान ने चीख कर कहा है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम यूं ही हंसते खेलते जन्नत में चले जाओगे? जैसी जिंदगी दिल चाहे गुजारो, अल्लाह को राजी करो करो, ना करो ना करो। नबी के तरीके को अपनी जिंदगी में दाखिल करो करो, ना करो ना करो, और फिर ख्याल करो जन्नत हमारी और हमारे बाप दादाओं की। कुरान ने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम यूं ही हंसते खेलते जन्नत में चले जाओगे? जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। मुसलमानों, पहले मुसलमान इस्लाम के दायरे में आने के लिए आपको सच्चा पक्का मुसलमान होना पड़ेगा। अभी तो हम जानते ही नहीं कि इस्लाम का तकाजा क्या है। फिर हम वाय वेला करते फिरते हैं, वो इस्लाम पर तंज कर रहा है, वो मुसलमानों को बुरा भला कह रहा है। मुसलमानों, अपने किरदार को तो संभालो, पहले अपने आप को मुसलमान तो बनाओ, फिर बतलाओ। हजरत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने मेरे और आपके आका की बताई हुई हर बात को अपनी जिंदगी के ऊपर लाजिम मजलूम कर लिया, लाजिम मलजूम कर लिया, और फिर कहा लोगों से आकर के, आओ अब बतलाओ इस्लाम क्या कहता है, अब बतलाओ मुसलमानों के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है। हर एक आदमी आपके दायरे में आने के बाद इस्लाम का नारा बुलंद करने से अपने आप को न रोक सका है। मेरे आका ने तो हमें दर्स दिया है, मेरे आका ने तो हमें समझाया है, मेरे आका ने हमें बतलाया है। अल्लाह के महबूब निकलते हैं, एक गली से गुजर रहे हैं, देखते हैं एक बूढ़ी औरत है, उस बूढ़ी औरत के साथ एक बहुत सारा सामान है। आप फरमाते हैं, माई तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं? आप तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? लगता है सामान को उठाने वाले की जरूरत है। तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों के अंदर इतनी ताकत नहीं कि आप इस सामान को उठा सकें, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? बूढ़ी माई कहती है, हाँ बेटा, मुझे मदद की जरूरत है, मुझे एक मजदूर की जरूरत है ताकि मेरे इस सामान को उठाकर मेरी मंजिल तक कोई पहुंचा सके। मेरे और आपके आका फरमाते, माँ मैं हाजिर हूं, बता ये तेरा गुलाम इस सामान को लेकर कहां तक जाए? उसने कहा मेरी मंजिल फला जगह है। आप उसके सामान को उठाते हैं, अपने सर पर रखते हैं, और लोगों मुसलमानों बतलाओ आज इस बूढ़ी औरत के, जिसको आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपका कोई मामला नहीं है, उसके सामान को अपने सरों पर उठाकर कौन चल रहा है? वो चल रहा है जिसके कदमों की आहट को सुनकर फरिश्ते रश्क कर रहे हैं, जिसको मेरा रब अल्लाह यूं फरमा रहा है, मेरे महबूब अगर मैं तुझे ना बनाता तो इस कायनात को ना बनाता, और मेरे महबूब अगर मैं तुझे ना बनाता तो जन्नत को ना बनाता, और मेरे महबूब अगर मैं तुझे ना बनाता तो इस दुनिया के नजारे को ना बनाता। अल्लाह जिसके ऊपर फख्र कर रहा है, अल्लाह जिसके लिए यूं कह रहा है, अल्लाह जिसके लिए यूं कह रहा है कि मैं खुद अल्लाह तुझे सलाम पेश करता हूं, उसके लिए उसका मामला, उसका अमल यह है कि एक अनजान के भारी वजन को अपने सर पर रख कर लेकर चलता है। और मजीद मामला फिर क्या होता है?
वो बूढ़ी औरत सारे रास्ते कहती है, बेटा मैं ये गांव इसलिए छोड़ रही हूँ, यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद है, वो तरह तरह की बातें करता है, तू उसकी बातों में ना आना, तेरा चेहरा बड़ा निराला है, बड़ा नूरानी है, तू बड़ा शरीफ लगता है, अरे तू बड़ा नेक लगता है, मेरे बच्चे मैं तुझे नसीहतें कर रही हूँ, उसकी बातों में ना आना, उस मोहम्मद के चक्कर में ना पड़ जाना, उससे मुलाकात करने की जरूरत महसूस ना करना, अपने आप को उससे बचाकर रखना। सारे रास्ते अल्लाह के नबी मेरे आका के खिलाफ बगावतें करती चली जाती है, बदजबानी करती चली जाती है, आपको बद किरदार ठहराती है, आपके ऊपर इल्जाम तराशियां करती चली जाती है, आप तबस्सुम फरमाए रहते हैं, आप तबस्सुम फरमाए रहते हैं और चलते रहते हैं। जब मंजिल मकसूद पर पहुंच जाती है वो रोकती है और कहती है, बेटा जरा रुक जा, अपनी मजदूरी तो लेता चला जा। आप फरमाते मुझे मजदूरी की जरूरत नहीं, मेरा अखलाकी फरीजा ये था कि आपकी मदद करूं। ओ माई मुझे मजदूरी की जरूरत नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैं आपकी मदद करूं, मुझे मजदूरी की जरूरत नहीं है। वो कहती है, बेटा जाते वक्त अपना नाम तो बता दे। आप कहते हैं, मैं वही मोहम्मद हूं जिसकी तारीफ अभी आप कर रही थी, मैं वही मोहम्मद हूं जिससे बचने की नसीहतें आप कर रही थी अभी, मैं वही मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं जिसके पंजे में फंसने के लिए आप कह रही थी कि अगर तू वहां फंस गया, उसके पंजों में, उसके चुंगल में फंस गया तो तू हलाक हो जाएगा, मैं वही मोहम्मद हूं। वो बूढ़ी कहती है, बेटा अगर तू सच में वही मोहम्मद है तो ये बूढ़ी आज तेरी दीवानी होती है, मुझे अपने हाथ पर इस्लाम मुशर्रफ बा इस्लाम कर ले। ये हमारा किरदार है। मेरे में आका फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, लोगों मुझे दुनिया के अंदर मबऊस इसलिए किया गया है कि मैं बेहतरीन अखलाक पेश करूं, मैं बेहतरीन अखलाक पेश करूं। आज हम अपने आप को फख्र से मुसलमान कहते हैं, लेकिन हमारा किरदार क्या है, हमारा मामला क्या है कि अगर मेरे घर के अंदर मेरे साथ रहने वाला मेरा भाई बीमार है तो खुदा की कसम हमारा रवैया ये है, मैं कहता हूं ये अभी बीमार हुआ है, अभी इसमें कीड़े पड़ेंगे, जब पता चलेगा ये और ज्यादा बीमार हो जाए, मैं नहीं दिखाता इसको, मैं अपने भाई की जियारत करने के लिए राजी नहीं हूं, मैं अपने भाई से मिलने के लिए राजी नहीं हूं। हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़े उछालते फिरते हैं, ये मुसलमानों का किरदार नहीं है। आज हमने अपने आप को पहचानना बंद कर दिया, हम खुद नहीं पहचाने कि इस्लाम किस बात का दर्स देता है। उंगलियां उठाते हैं कि वो मुसलमानों को बुरा कह रहा था, वो इस्लाम के ऊपर तंज कर रहा था। आप बताओ आपने इस्लाम के साथ में कौन सा इंसाफ किया है? आप तो खुद नहीं जाने कि अभी मुसलमानों का तकाजा क्या है, इस्लाम का किरदार क्या है, इस्लाम के तकाजे क्या हैं, इस्लाम का दर्स क्या है। आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। इस्लाम को समझने के लिए आपको रुख करना पड़ेगा मदारिस दीनिया की तरफ। इस्लाम को जानने के लिए आपको रुख करना पड़ेगा कुरान करीम को समझने के लिए। इस्लाम को समझने के लिए आपको रुख करना पड़ेगा इन अकाबिरीन के कदमों में आकर बैठने के लिए, तब जाकर इस्लाम समझ में आएगा। हम ये ख्याल करते रहे हम अपने घर में बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं और यही सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हाँ ये गूगल का जमाना है, नेट का जमाना है, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं नेट पर देख लूंगा। इस्लाम को नहीं समझ सकते हो, इस्लाम को नहीं समझ सकते हो, अपने आप को नहीं पहचान सकते हो। अगर अपने आप को पहचानना है तो आओ मदारिस दीनिया के अंदर, आओ उलमा के कदमों के अंदर बैठने के लिए तैयार हो, फिर तुम्हें इस्लाम समझ में आएगा, फिर जिंदगी का मकसद समझ में आएगा, फिर हम फख्र से कहेंगे मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की जाफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की जाफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, समझो, होश के नाखून लो, अपने आप को जगाओ, अपने आप को समझाओ, अपने आप को उभारा दो और ख्याल करो कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या था और तुम कर क्या रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम यूं ही गफलत की जिंदगी गुजार कर यहां से दुनिया से रुखसत हो जाएं, फिर अल्लाह के यहां पर हमारे लिए नुकसान ही नुकसान हो, टोटा ही टोटा हो, खसारा ही खसारा हो।
اس لیے ہمارے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اسلام کو جاننے کی کوشش کریں گے، ہم ہر طریقے سے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین اسلام کی سچی صحیح سمجھ مجھے بھی آپ کو بھی عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون انشاءاللہ عمل کریں گے؟ انشاءاللہ اپنے دلوں کو صاف کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر بسائیں گے، انشاءاللہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی ساری زندگی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ واہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ اس مجلس، اس نورانی مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، کیونکہ آپ نے اللہ کے حضور میں بیٹھ کر اللہ کے یہاں پر صرف اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کیا ہے، نہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر ہے، نہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ ہے، آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اپنے دل سے کیا اور اللہ کی تمام باتوں کو سمجھنے کا جو عہد کیا، اللہ اس کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس اسلام کو سمجھنے کے لیے جیسے کہ ابھی ہم نے بتلایا